अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आदि सिंधवास गवर्नमेंट विप ने कहा है कि केटीआर अपनी बहन कविता की जमानत के लिए दिल्ली में घूम रहे। तिहाड़ जेल में छोटी बहन मलकूत के लिए दिल्ली जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे। बेहतर होता अगर केटीआर और हरीश राव ने कहा कि वो कविता को मंजरेआम पर लाने के लिए विकला से तबादला ख्याल कर रहे हैं। बीआरएस लीडर बड़े बड़े अल्फाज कह रहे कि वो पार्टी निराफ पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनी माहिरीन से बात करेंगे। ఢిల్లీకి వెళ్లి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతూ న్యాయ కోవిదుతో చర్చిస్తున్నాం. అసలు మీకు ఢిల్లీలో ఏం పని అంటున్నాం? హరీష్ రావు గారు కానీ కేటీఆర్ గారి పని. ఇద్దరు కూడా ఏ విధంగా కవితను జైలు నుంచి విడుదల చేయాలని చెప్పని న్యాయ కోవిదుతో మేము సంప్రదింపు జరుగుతున్నట్టే బాగుండు. కానీ ఉప ఎన్నికలు వస్తాయి. ఈరోజు పార్టీ మారిన వారిపైన తగు చర్యలు గైకొనడానికి కోసం మేము న్యాయ నిపుణులతో మాట్లాడుతున్నామంటున్నాం. సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్తున్నామంటున్నారు. స్పీకర్ గారు ఎందుకు నోరు మెలుపుతలేరంటున్నారు. అసలు ఈ 10 సంవత్సరాల మీ పరిపాలనలో సుప్రీం కోర్టు అంటూ ఒకటి ఉందని చెప్పి ఏనానన్నా మీకు గుర్తుంచుకున్నారని అడుగుతున్నాం. పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్న మీరు ఆనాడు స్పీకర్లు ఎందుకు నోరు మెదపలేరు అనే దానికి ఏం సమానం చెప్తారు? మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 10 సంవత్సరాల్లో సుమారు 60 మంది పైచిలకు చట్టసభ సభ్యులు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలను ఎమ్మెల్సీలను చేర్చుకొని రాజ్యాంగాన్ని అపస్యం పాలు చేసినప్పుడు ఎందుకు ఈ న్యాయ కోవిదులు ఎందుకు ఈ సుప్రీంకోర్టు గుర్తుకు రాలేదని చెప్పని సందర్భంగా ఈరోజు 10 ఏళ్ల పాటు పనిచేసిన స్పీకర్లు మాట్లాడరు. ఈరోజు ఉప ఎన్నికలు తప్పు అనే మాట నాకు బాగా గుర్తు. వేములవాడ నుంచి మీరు ఒక ఎన్ఆర్ఐకి టికెట్ ఇచ్చి రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించి అసలు భారతదేశ పౌరుడే కానటువంటి వ్యక్తికి ఈరోజు మీరు అసెంబ్లీ టికెట్ ఇచ్చి అధర్మంగా వేములవాడ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా మీ పరపతితో గెలిపించుకున్నటువంటి మీరే రోజు మాట్లాడేది కోర్టుల గురించి అడుగుతున్నాం. ఆయన భారతదేశ పౌరుడు కాదు అని తీర్పు వచ్చిన ప్రతిసారి ఇదే విధంగా ఢిల్లీకి చెక్కలు కొట్టి ఆనాడు బీజేపీ ఉన్నటువంటి పెద్దలతోటి సంప్రదింపులు జరిపి అధర్మంగా ధర్మాన్ని అణచివేసినటువంటి మీకు ఈరోజు సరైన బుద్ధి చెప్పేటువంటి సమయం ఆసన్నతున్న వేళ మళ్లీ ఉప ఎన్నికలని అంటున్నటువంటి మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నాం. మొన్నటికి మొన్న 6-7 మాసాల క్రితం జరిగిన ఎన్నికల్లో తెలంగాణ ప్రజలు కాదా మిమ్మల్ని పక్కన పెట్టింది? తెలంగాణ ప్రజలు కాదా మిమ్మల్ని దూరం పెట్టి మీకు ఇక చాలు మీకు ఈ పదవి అధికారం అహంకారంతో రాష్ట్రాన్ని అప్పులో కుప్పగా మార్చారని చెప్పని మిమ్మల్ని ప్రతిపక్షానికి పరిమితం చేయలేదా? అంతేందుకు 2 మాసాల క్రితం నెల 15 రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి ఉప ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో జీరోకే మీ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి పరిమితం చేసినటువంటి పరిస్థితిని మర్చిపోయారంటున్నా. ఇంకా ఉప ఎన్నికలు అంటారు. ఉప ఎన్నికలలో ఏం సాధిస్తారు మీరు అంటున్నారు? ఉప ఎన్నికలు వచ్చినా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి కంటోన్మెంట్ లో గెలిచిండు. ఆ విషయం కూడా మర్చిపోయారని అడుగుతున్నా. ప్రజల తీర్పు కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి గణేష్ గారిని గెలిపించారు. ప్రజలు తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి గారి సర్కార్ చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఆకర్షిలే ముందుకు పోతుంటే ఈ ఢిల్లీలో మీ హడావుడ్ ఏంటనే మాట ప్రజలందరూ కూడా చర్చించుకున్న సంగతి. పార్టీ నుండి మారితే పదవి పోతుందనేటువంటి భయం కలిగించడానికి కోసం మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే కోసం చేసేటువంటి నాటకం తప్ప మరొకటి కాదు. అసలు ఢిల్లీలో మీ వెంట ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఎంతమంది మీ వెంట ఉంటారో ఒకసారి చూసుకోవాల్సిందిగా, అసలు మీతో ఢిల్లీకి వచ్చినటువంటి ఎమ్మెల్యే మీతో ఉంటారో లేదో ఒకసారి గమనించమని సందర్భం కోరుతూ, కేటీఆర్ గారు హరీష్ రావు గారు ఎన్ని ప్రయత్నం చేసినా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేకి మీతో ఉండరు. అసెంబ్లీ నడిచిన 3 సమావేశాల్లో మీ ప్రతిపక్ష నాయకుడు ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడి పోరాటం చేయడానికి ముందుకు రాక మనోధైర్యం కోల్పోయి ఫామ్ హౌస్ గా పరిమితమైన వేళ ఇక మేము బీఆర్ఎస్ ఉంటే ప్రజా జీవితంలో ప్రజాసేవ చేసే అవకాశం రాదనుకున్న రోజు రేవంత్ రెడ్డి గారి సర్కార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపడుతున్నటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు మెచ్చి రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తున్నటువంటి వారిపైన ఈరోజు మీరు మాట్లాడిన మాటలను ఒకసారి ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్న చెప్పనమాట సందర్భంగా మేము మనవి చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు న్యాయ కోవిదుతో చర్చలు ఢిల్లీలో ఇప్పుడు అడావిడి చేస్తున్న మీరు 10 ఏళ్ల పాటు ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలను ఎంపీలను చేర్చుకున్నప్పుడు ఈ న్యాయ కోవిదు కనిపించలేదని చెప్పిన మాట ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ
అసలు వెళ్ళింది మీరు ములాఖత్ కొరకు తిహార్ జైలు ఉన్నటువంటి మీ చెల్లెల కోసం మీ బంధువు కోసం మీరు వెళ్లి ఈరోజు ఏదో హడావుడి చేస్తూ ఉప ఎన్నికలు అని పెద్ద మాట మాట్లాడుతుండ్రు. మొన్నటి ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్కన పెట్టినట్టే రాబో రోజులు ఏ ఎన్నిక వచ్చినా జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్, సర్పంచ్ ఎన్నికలు, సింగల్ ఎన్నికలు ఎన్నికలు వచ్చినా ఈరోజు మీకు తగిన రీతిలో ప్రజలు సమానం చెప్తారు. ఓవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతు రుణమాఫీ చేసి 6 గ్యారెంటీలు 5 అమలు చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్న తరంలో ప్రజలందరూ కూడా ఈ ప్రభుత్వం రావాలని కోరుతున్న సందర్భంలో ప్రజలలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్తున్నటువంటి ప్రజాదరణ చూసి ఓర్వలేకనే ఈ విధమైన మాట తప్ప మరొకటి కాదన్నమాట సందర్భం చెప్తూ మరో మాట 6 మాసాల్లో అనర్హత పైన అనర్హత పిటిషన్ పైన చర్యలు తీసుకోవడం మేము కోరుతామంటున్నారు. 2009లో వేములలో శాసనసభ్యుడు గెలిచిన వ్యక్తి జర్మనీ పౌరుడు. అట్లంటే 6 మాసాలు ఎన్ని 6 మాసాలు పోయిందో అంటున్నా. ఢిల్లీలో భారతదేశ పౌరసత్వం హోంశాఖ ద్వారా రద్దయ్యే ప్రతి సమయంలో మీ అపాయింట్మెంట్లు ఢిల్లీలో ముఖ్య నాయకులకు ముఖ్యమంత్రి గారు, కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు పెట్టుకుని ఆనాడు భారతదేశ పౌరసత్వం రద్దు కాకుండా పైరవీలు చేసినటువంటి మీరు ఈ రోజు నైతిక హక్కు గురించి మాట్లాడేటువంటి అసలు ఆలోచనే మీ తప్పని మాట చెప్తున్నారు. అసలు నైతిక విలువలకు తిరోధకాలకు ఇచ్చింది మీ హయాంలో అనే మాట ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఢిల్లీలో చక్కర్లు కొట్టుకోండి మీ కుటుంబ సభ్యుల కోసం, మీ కుటుంబ సభ్యులకు బెయిల్ కోసం పర్వాలేదు, కానీ పెద్ద పెద్ద మాటలతోటి ఈ రోజు మళ్లీ సుప్రీంకోర్టు తలుపు తడదామని న్యాయకులతో చర్చలంటూ హడావుడి చేయడం అనేది సహేతుకం కాదు. ప్రజలందరినీ వీటిని గమనిస్తున్నారని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. पेद्दापल्ली के एमएलए विजय रमन राव ने कहा है कि साबिक वजीर गंगुला कमलाकर जरा भी समझ में आए बगैर बोल रहे। कालेश्वरम को उनके दौरे हुकूमत में बनाया और तबाह किया गया। केटीआर कालेश्वरम गए, सेल्फी ली और तस्वीरें खिंचवाई। क्या बीआरएस लीडरों को नहीं मालूम कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के अहदेदारों ने उनसे कहा है कि वो मिड्डी गड्ढा, नारम और सिंड्रेला में पानी जखीरा न करें। कालेश्वरम जिसे 1 लाख करोड़ रुपए से लूटा गया था 3 साल के अंदर मुनद्दम हो गया। पीडीएस चावल की गैर कानूनी नकल व हमल और फरोख्त करने वाले रैकेट का पर्दाफाश, 3 पकड़े गए। 28 क्विंटल पीडीएस चावल, 1 अशोक लीलैंड गाड़ी जब्त। पीडीएस चावल की कीमत 72,774 रुपए बताई गई। खुफिया इतला पर कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद के एहलकारों ने सिविल सप्लाई अहदेदारों और बहादुरपुरा पुलिस के साथ हसन नगर बहादुरपुरा में वाक़े फेयर प्राइस राशन शॉप के नाम से एक राशन शॉप पर छापा मारा और 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिसमें मुलजिमान ने राशन शॉप डीलर के साथ मिली भगत की थी। साइबराबाद एडीसीपी एडमिन ने एडीसीपी रविचंदन रेड्डी के जरिए तेलंगाना के नजरियाती प्रोफेसर जयशंकर को उनकी यम पैदाइश पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। साइबराबाद के एडीसीपी एडमिन रविचंदन रेड्डी और साइबराबाद सीपी ऑफिस के अमले के जरिए प्रोफेसर जयशंकर को यम पैदाइश पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। एडीसीपी ने प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और साइबराबाद पुलिस के तमाम अमले के साथ उन्हें खराज पेश किया। टीजेएस के सदर प्रोफेसर कोदंडा राम और टीजेएस कायदी ने तेलंगाना के नजरिए साज आचार्य प्रोफेसर जयशंकर को उनकी यम पैदाइश पर और अवामी जंगी जहाज गदर और सियासत के एडिटर जहीर अली खान को उनकी वफात के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि छोटे अखबारात में काम करने वाले जिले और हल्के की सतह के सहाफियों को मीडिया एक्रेडिटेशन सरकारी शनाख्ती कार्ड दिए बगैर दूर रखना नाजायज है। इस हद तक तेलंगाना मीडिया एक्रेडिटेशन रूल्स 2016 ने एक ताज़ा फैसला दिया है जो शेड्यूल ई को मुतासर करता है। इसने कहा है कि छोटे अखबारात को 4 हिस्सों में तकसीम करना नाजायज है। 2016 में महबूब नगर के तातीकोंडा, कृष्णा और दीगर ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की, जिसमें इस वक्त की हुकूमत के जियो 239 के जरिए तय करदा क़वायद को चैलेंज किया गया। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने जीएचएमसी के अहदेदारों और प्रोजेक्ट अहदेदारों के साथ कारवाना हल्के में ज़ेर-ए-इल्तवा तरक्याती कामों के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग के दौरान एमएलए के साथ मजलिसी पार्टी के कॉर्पोरेटर और प्राइमरी यूनिट के सदर मौजूद थे। कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने जीएचएमसी कमिश्नर और जेडसी खैरताबाद से बातचीत की है और सफाई के मसाइल के साथ साथ शाहातिम झील, हुडा पार्क, बालकपुर नाला और मूसी रिवर की बाकायदगी फॉगिंग के जिमन में बात की। इसके अलावा मानसून सीजन के आगाज के बाद से वायरल बुखार में इजाफा हो रहा और गुजारिश की कि महकमे एंटोमोलॉजी को बाकायदा फॉगिंग की हिदायत करें। 10 करोड़ के ज़ेर-ए-इल्तवा कामों और ज़ेर-ए-इल्तवा मंसूबों को मनसूख करें। कारवान हल्के में स्ट्रीट लाइट्स का ना चमकना भी मसला है।
मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मजलिसी पार्टी ऑफिस मिराज कॉलोनी में मुस्तकिल में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। बाद में एमएलए ने अवामी शिकायत सुनी और इस दौरान मजलिसी पार्टी के प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुन मौजूद थे। गुज़िश्ता रात को चेयरमैन के इल्म में ये बात आई थी कि चंद नामालूम अनासिर ने गगन पहाड़ शमशाबाद मेन रोड पर वाक़े चिल्ला मुबारक को मुनद्दिम कर दिया है। इसी मुनासिबत से चेयरमैन की हिदायत पर वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव स्टाफ ने जाए वक्फ का दौरा करते हुए मुआयना किया और एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मजीद बराए चिल्ला मुबारक के इलाके को बहाली के रास्ते से महफूज कर लिया गया। आप तमाम जानते हैं ये जो राजेंद्र नगर गगन पहाड़ का जो वाक़या था, जिस तरह से चिल्ले को जो हमारे देहात के यहाँ के जो लोग हैं, जो दीगर जिम्मेदारान हमारे साथ ठहरे हुए हैं, इस चिल्ले को हटाकर वो लोगों ने पीछे जो महबूब सुबानी साहब का और एक चिल्ला है जो वक्फ गज़ट प्रॉपर्टी है उसके बाजू ये लोगों ने बना लिया। तो फौरी जैसे इसकी इत्तला मिली, कल रात से समझिए कि 3 दिन का ये जो वाक़या चल रहा, जो गर्मा गर्मी है, इसमें माशाल्लाह हमारे वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब है, उनकी जो सरपरस्ती में आज ये जो चिल्ले का मामला चला है उसको एक सही रुख देते हुए माशाल्लाह से वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर साहब की, सर्वेयर की और दीगर जिम्मेदारान की टीम आई और हमारे साथ कल रात में जो हमारे साथ हमारे हुसैन साहब है लीगल काउंसिल माशाल्लाह वो और पूरी टीम यहाँ पे जिम्मेदारी से देहात वालों से जो मामला पेश आया उसकी जो हमने इनसे लाइल्मी से जो मामला पेश आया, लोग का ये सोशल मीडिया वगैरह पे शोर शराबा हुआ कि ये कोई खबर है, यानी ये कोई दरगाह है। हकीकत में ये वक्फ गज़ट के हिसाब से एक चिल्ला है। तो चिल्ले की जो शनाख्त है, जिस एतबार से काम होना है, वो वक्फ बोर्ड से माशाल्लाह गांव वाले अगर ले लेते तो काफ़ी अच्छा मामला था गगन पहाड़ का। तो बेचारे लाइल्मी से जो यहाँ पे मामला पेश आया कि एक आपसी भाईचारे के तरह जो रोड पे, चाहे वो बेहुरमती होने में हो या सड़क के बीचों बीच आने का हो हाईवे पे, तो ये लोग एक कदम आगे बढ़ के उसको वहाँ से हटाकर ये महबूब सुबानी का जो और एक चिल्ला है उसके बाजू वो लोगों ने बना लिया। तो जैसे इसकी इत्तला हमारे चेयरमैन साहब को हुई, वक्फ बोर्ड की टीम को रवाना किया माशाल्लाह। वक्फ बोर्ड की टीम फिर से जो चिल्ला था उस चिल्ले को यहाँ पे वहाँ जो जगह पे जो पहले से था उसको बनवा दिया और बनवा के माशाल्लाह जो हुसैन साहब दीगर हमारी जिम्मेदार टीम यहाँ पे आके गांव वालों को भी मशवरा दिए कि वक्फ बोर्ड जो होती है अल्हम्दुलिल्लाह उसके बिना मशवरे के या उसके हिदायत के बिना काम करना ये बहुत गलत बात होती है। तो उसका एहसास हमारे उस्मान साहब और दीगर यहाँ के गाँव वालों को हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो चिल्ले की जो जिस तरह से मुबारक जो आस्था है हमारा, तो उस मामले में जो सोशल मीडिया पे बातें आई उसको तमाम को रद्द करते हुए आप तमाम को ये बता रहे हैं कि लाइल्मी से जो काम हुआ उसको वक्फ बोर्ड ने अपनी जानिब से फौरी एक्शन लेते हुए जो दीगर जिम्मेदारान यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है, उन तमाम से इस काम को एक माशाल्लाह से शक्ल दी गई है। तो आप तमाम से भी हम जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब, वक्फ बोर्ड टीम और विलेजर्स ये तमाम अब इस मसले को जो है सो यकसुई से जिस तरह से हल होना है उस तरह से उसको एक रुख दे रहे हैं। तो जैसा कि रात से पूरे हमारे हुसैन साहब और दीगर जिम्मेदारान यहाँ थे, अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब के पूरे जो चेयरमैन साहब के वक्फ बोर्ड के हिदायत पे काम हो रहा, तो हम तमाम से यहाँ पे कांग्रेस के जो दीगर गाँव वाले सब है, तो माशाल्लाह ये तमाम ने एक भाईचारे का और एक सही यकसुई से इस मामले को हल करने की कोशिश की। तो आप तमाम से फिर एक मरतबा गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग जो भी है, जो उस्मान साहब की और दीगर हमारे भाइयों की क्लिप वायरल हुई है, तो उसकी हकीकत ये है जो गगन पहाड़ के चिल्ले का वाक़या जो है जिसको गलत रुख दिया जा रहा, जैसे कि चिल्ले को आप दरगाह बता रहे हैं या खबर बता रहे हैं, कोई मज़ार की बेहुरमती बता रहे हैं, ये तमाम बहुत गलत है। तो इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड की इस पे आगे कार्रवाई होंगी। इंस्पेक्टर साहब आके तमाम जायज़ा लिए हैं। हम पुलिस का भी काफ़ी शुक्रिया अदा करें, इंटेलिजेंस का, लॉ एंड ऑर्डर का, कि आप तमाम ने इसके जो मसले को है सही एतबार से इसका एक रुख बताते हुए आगे चल के ऐसा कोई मसला कहीं ना हो, तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब अज़मतुल्लाह हुसैन साहब पूरा जायज़ा इसका ले रहे हैं। तो आप तमाम का फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करते हुए ये देहात वालों को भी इंशाल्लाह इस मामले में जो भी ये मसला है इसको यकसुई से हल करते हुए वक्फ बोर्ड की जो चहलकदमी है इसके अंदर हम तमाम उसकी मुबारकबाद पेश करते हुए आइंदा से ऐसे वाक़े नहीं होने की पूरा तयक़ुन और पूरा भरोसा दिया गया। जज़ाकल्लाह। एमएलए प्रकाश गौड़ ने कहा है कि सफाई और हरियाली सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि कुदरती तौर पर पौधे उगाने से हर कोई फितरत के तोहफे के तौर पर खालिस ऑक्सीजन मुफ्त हासिल कर सकता है। रियासती हुकूमत के महत्वाकांक्षी सफाई और हरियाली प्रोग्राम के दूसरे दिन उन्होंने शमशाबाद म्यूनिसिपालिटी में सफाई और हरियाली प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जग्गा रेड्डी कांग्रेस वर्किंग सदर ने कहा है कि रेवंत रेड्डी के दौर में असेंबली पूरी तरह से चलती है। मोदी के साथ ITIR का संग बुनियाद रख कर अपनी सलाहियत का सबूत दें। बीजेपी लीडरों का कहना है कि हिंद पाक करप्शन है और क्या इसीलिए मोदी भी गंगा की सफाई कर रहे। सीएम रेवंत और श्रीधर बाबू तेलंगाना में सरमायाकारी लाने के लिए अमेरिका गए हैं।
कॉग्निजेंट एक आलमी शोहरत याफ्ता IT कंपनी तेलंगाना में बड़े पैमाने पर तोसी मंसूबे के साथ आई है। हैदराबाद में तकरीबन 15,000 मुलाजमीन को काम फराहम करने के लिए एक नया सेंटर कायम करने का ऐलान किया। ये सेंटर 20,000 मुलाजमीन की रिहाइश के लिए 10 लाख मुरब्बा फीट के इलाके में कायम किया जाएगा। रेवंत रेड्डी जो अमेरिका के दौरे पर हैं, IT के वजीर श्रीधर बाबू ने कॉग्निजेंट के CEO रवि कुमार और कंपनी के वफ्द से मुलाकात की। तेलंगाना मिनॉरिटी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन आदिलाबाद के एक वफ्द ने मुतबादला मंडल एजुकेशन ऑफिसर डी सौमिया से उनके दफ्तर में खैर सुगाली मुलाकात की। उनके आदिलाबाद में बहैसियत MEO की तकरीरी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए गुलदस्ता पेश किया, उनकी शाल पोशी भी की। TMPRS जिले सदर अमीरुद्दीन ने MEO से तंजीम का तारुफ पेश करते हुए मिनॉरिटी स्कूल्स के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने दौरान बातचीत कहा कि मिनॉरिटी मदारिस इंतहाई कम बजट में चलने वाले तालीमी इदारे हैं, जहां पर अक्सरियत मुतवस्सित व गरीब तबके के बच्चों की है। मोहम्मद आमिरुद्दीन चाणक्य इंटरनेशनल स्कूल। तेलंगाना किसान कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी बी श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि प्रोफेसर जयशंकर एक अजीम शख्स थे, जिन्होंने तेलंगाना तहरीक के नजरिए साज की हैसियत से और तेलंगाना के अवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की। प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर बोरांचो श्रीकांत रेड्डी ने जिले के मुस्तकिर के तेलंगाना चौक में प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए खराज अकीदत पेश किया। नारायणा CPI सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल ने कहा है कि बांग्लादेश की सदर शेख हसीना अपनी आमराना हुकूमत की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। CPI ने बांग्लादेश तहरीक का खैर मकदम किया है। ఆమె బంగ్లాదేశ్ వదిలిపెట్టి భారతదేశంలో సల్లాస్ కోసం స్థిరపడింది. అది ఒక విధంగా సైనికుల పరిపాలనకి వెళ్ళిపోయింది. ప్రజాస్వామ్యం లెక్క చేయకుండా నియంత్రణ పద్ధతి ఉండడం వల్ల ప్రతిపక్ష పార్టీ కూడా ఎన్నికల్లో పాల్గొకుండా బాయ్కాట్ చేశాయి. దాంతో ఏకపక్షంగా గెలిచింది. అది ప్రజాస్వామ్యం గెలిచి అనుకున్నారు. కానీ ప్రతిపక్షాల పార్టీ పాల్గొకుండా ఏకపక్షంగా గెలవడం అనేది ఒక నియంత్రణకి దారితీసింది. చివరికి ఆమె నాకు ఎదురు అనుకునింది. కానీ విద్యార్థి ఉద్యమం, ప్రజల ఉద్యమం తీవ్రతలతోటి చివరికి ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమం తలవక తప్పలేదు. ఎవరైనా సరే నియంత్రిత పోకలు ఇస్తే ఇలాంటి గుణపాఠం వస్తుంది. ఇప్పటికైనా ఇలాంటి పద్ధతులను మానుకోవాలని పాల్గొని విజ్ఞప్తి చేస్తానన్నా. అదే సందర్భంలో ఈ బంగ్లాదేశ్ విద్యార్థులు ప్రజల యొక్క ఉద్యమానికి జయపడడానికి అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాను. मुश्ताक मलिक तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर ने मोइनाबाद की मस्जिद जागीरदार की शहादत पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। आइए देखते हैं मुश्ताक मलिक ने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद जागीरदार मोइनाबाद की शहादत 22 जुलाई को हुई थी और उसके बाद वहां वक्फ बोर्ड चेयरमैन और फिर माइनॉरिटी वेलफेयर के स्पेशल सेक्रेटरी तफसीर इकबाल गए थे और उसके साथ फ़हीम कुरैशी साहब चेयरमैन टिमरीस ने भी वहां दौरा किया था। और उसके बाद फिर विश्व हिंदू परिषद या हिंदू तहरीकों की जानिब से वहां एक ज़बरदस्त एहतजाजी धरना हुआ और उसमें यह ऐलान किया गया कि अगर मस्जिद दोबारा तामीर की जाती है तो हम फिर मस्जिद को गिरा देंगे। लेकिन बहरहाल बोनाल जुलूस ये सारी चीज़ें थी, इस पर हम भी थोड़ा सब्र व तहम्मुल से काम कर रहे थे। कल रात मैंने फ़हीम कुरैशी साहब से बात की कि भाई मस्जिद के मसले को कैसे हल कर रहे हैं और क्या उसमें पेशरफ्त हुई है। तो फ़हीम कुरैशी साहब ने मेरी गुजारिश पर आज वक्फ बोर्ड में तमाम चेयरमैन यानी हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना खुसरो पाशा बियाबानी साहब और फिर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल साहब, फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुजीब साहब और फिर उसके साथ समझिए कि दीगर लोग जिसमें उस्मान अल हाजरी साहब, उस्मान मोहम्मद खां और फिर दीगर सीनियर सहाफ़ी भी आज के इजलास में मौजूद थे। बुनियादी बात जो चेयरमैन से ये की गई
کہ وقف بورڈ نے اپنی طرف سے درخواست پولیس کو مسجد کی شہادت کی کیوں نہیں دی، ایک خاتون کی درخواست پر ہی اکتفا کیوں کیا گیا، اور پھر مسجد کی تعمیر 2 دن میں شروع ہونے والی تھی، اب تک کہ مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی ہے، نہ وہاں نماز ادا کی جا رہی ہے۔ بہت واضح الفاظ میں سمجھیے کہ میں نے یہ بات رکھی کہ اگر جمعے سے پہلے مسجد تعمیر نہیں ہوتی ہے تو مسئلہ دوسرا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ آپ حکومت سے جو بھی اس پر فہیم قریشی صاحب نے بھی بہت بہتر انداز سے چیئرمین کو سمجھایا اور بات کی کہ بھائی حکومت کی جو سمجھیے کہ منظوریاں ہیں مسجد بنانے کے سلسلے میں وہ بہرحال آتے رہیں گے، لیکن ایک شیڈ وہاں پر امیڈیٹ ڈال دیا جائے اور نماز فوری اثر کے ساتھ نماز وہاں شروع کر دی جائے۔ اور اس اجلاس میں وقف بورڈ کے سی او بھی موجود تھے جو میٹنگ کے منٹس لکھ رہے تھے، اور کافی دیر مختلف امور پر، اوقاف کے مسئلوں پر اور ملت کے دیگر مسائل پر کافی دیر بات ہوئی، کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا۔ لیکن مسجد جاگیردار کے سلسلے میں جو بات طے ہوئی اور منٹس وقف بورڈ کے سی او نے جو آخر میں فائنل کنکلوڈ کر کے جو سنایا، ہمارا جو مطالبہ تھا اس کو منوان وہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین نے کہا کہ انشاءاللہ جمعے سے پہلے وہاں شیڈ تعمیر ہو جائے گا، نماز بھی شروع کر دی جائے گی۔ جہاں تک کہ مستقل تعمیر کا مسئلہ ہے، وہ مستقل تعمیر کی جو بھی پروسیڈنگ ہے وہ پروسیڈنگ ٹینڈر وغیرہ یہ ساری چیزیں چلتے رہیں گی، لیکن نماز نہیں رکنی چاہیے اور نماز شروع ہو جائے گی۔ بہرحال بڑے حسن و خوبی سے یہ بات سمجھیے کہ مان لی گئی ہے، اور آج کے اجلاس میں فہیم قریشی صاحب جو چیئرمین ٹمریز ہے انہوں نے ایک مؤثر رول ادا کیا ہے، اور ہم نے جو بات کہی کہ بھئی کانگریس کی ہم نے کھل کر تائید کی ہے اور لوگ آج ہم سے سوال کر رہے ہیں، یہی بات سمجھیے کہ سبھی نے کہی ہے کہ عوام کے سامنے ہم جواب دینے کے موقف میں نہیں ہیں، جلد سے جلد سمجھیے وہاں نماز بھی شروع ہونی چاہیے اور شیڈ بھی بننا چاہیے۔ جو ایف آئی آر بنا ہے وہ ایف آئی آر انتہائی کمزور ایف آئی آر ہے، اس سلسلے میں بھی بہت واضح بات کی گئی ہے کہ آپ وقف بورڈ ایک درخواست ڈپٹی کمشنر آف پولیس کو دے کہ مسجد شہید کر دی گئی ہے اور یہ درج اوقاف مسجد ہے، اوقاف کا ریکارڈ بھی دے دیا جائے۔ اس کے ساتھ فرقہ پرستوں نے جو دھرنا دیا تھا، اس دھرنے میں مسلمانوں کو جو دھمکی دی تھی، وہ دھمکی مسلمانوں کو اور وقف بورڈ کو بھی ہے کہ دوبارہ تعمیر کریں گے تو ہم مسجد کو پھر گرا دیں گے، تو اس درخواست میں یہ بات بھی شامل کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ مسجد کا مسئلہ انشاءاللہ اس ہفتے حل ہو جائے گا، وہاں نماز شروع ہوگی۔ اللہ ہماری مساجد کی حفاظت کرے اور اللہ سمجھیے کے ساتھ بہتر راستے امت کے لیے نکالے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ کارپوریٹر راشدہ محمد رفیع جو صاف صفائی کے پروگرام کے تحت وویکانند نگر میں پدیاترا پر گئی۔ 128 چنتل ڈویژن وویکانند نگر کالونی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے قائدین نے گھر گھر جا کر مقامی مسائل کو جاننے اور مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کا مشورہ دیا۔ ڈویژن کے سینئر قائدین، کالونی قائدین، بستی قائدین، خواتین قائدین نے اس میں شرکت کی۔ انٹرنیشنل ایڈوکیٹ آرگنائزیشن کے صدر ایڈوکیٹ سدھیر شرما نے بلند شہر اتر پردیش کورٹ کا دورہ کیا ہے۔ سبھی ایڈوکیٹ سے مل کر انہیں اتر پردیش بار کونسل میں ووٹ دے کر بار کونسل کا ممبر بنائیں تاکہ وہ ایڈوکیٹ کے سبھی مشکلات ختم کر سکیں۔ ان کو کماری شرما دیکشت کو میرٹھ منڈل پریزیڈنٹ بنایا۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ نشا بھردواج، پرمود راجپوت، وینے کمار، امت چوہان، سبھاش گپتا کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ سبھی ادوکتا بندھوؤں کو میرا نمسکار۔ انٹرنیشنل ایڈوکیٹ آرگنائزیشن کا راشٹریہ ادھیکش ہونے کے ناطے میں اتر پردیش بار کونسل کا پرتیاشی ہوں اور ادوکتا ہت میں یہ چناؤ لڑ رہا ہوں۔ میں آپ سبھی ادوکتا بندھوؤں سے یہ نویدن کرتا ہوں کہ ادھک سے ادھک سنکھیا میں مجھے ووٹ دے کر سفل بنائیں۔ آج میرا یہ بلندشہر دورہ ادوکتاؤں کے وزٹ کے لیے ہے اور ادوکتاؤں کے ہت کے کاریہ کرنے کے لیے میں سمرپت رہوں گا۔ تن من دھن سے
अपना संपूर्ण जीवन अधिवक्ताओं के लिए न्यौछावर है और उनके हित में कार्य करता रहूँगा। आप मुझे अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर मेरे मनोबल को बढ़ाएं और मेरे बजट में मेरा साथ दें। अगर मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में होता हूँ तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य होगा कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता हित में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी कराऊंगा और जो भी योजनाएं होंगी अधिवक्ता हित में लागू कराऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मुनक्कदा प्रजावाणी प्रोग्राम में कुल 465 दरख्वास्तें मौसूल हुई। ओहदेदारों ने बताया कि रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल से मुतल्लिक 117 दरख्वास्तें, महकमे सिविल सप्लाई से मुतल्लिक 45, महकमे बिजली से मुतल्लिक 31, महकमे पंचायती राज देही तरक्की से मुतल्लिक 39, अक़लियती बहबूद से मुतल्लिक 58 और दीगर महकमों से मुतल्लिक 175 दरख्वास्तें मौसूल हुई। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के हाजन इलाके में एक 20 साला लड़का कुएं में फिसल कर हलाक हो गया। उन्होंने कश्मीर बुलेटिन को बताया है कि लड़का बांडीपुरा के हाजन इलाके में फिसलकर अपनी मौत के मुंह में जा चला गया। उन्होंने मजीद कहा है कि वाक़े के फौरन बाद लाश को निकालने के लिए एक तेज रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बादशाह लड़के की शनाख्त इरशाद अहमद डार वल्द गुलाम अहमद डार साकिन हाजन बांडीपुरा के तौर पर की गई। अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने और कानून के निफाज की हिकमत अमलियों को बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों के तहत एक जामे शिशमाही जुराइम का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में जोनल ISGP, रेंज DISG और रियासत की तेलंगाना के तमाम यूनिट अफसरान को इकट्ठा किया गया। इजलास का बुनियादी मकसद गुज़िश्ता 6 माह के जुराइम के आदाद व शुमार और रुझानात का तफसीली जायजा लेना, पुलिसिंग की मौजूदा हिकमत अमलियों की तासीर का जायजा लेना और उभरते हुए चैलेंजों से निमटने के लिए काबिल अमल इक़दामात पर तबादला ख्याल करना था। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।